So RipScript is my firm, and we are into providing solutions to people and businesses who want to establish themselves on the internet. Because nowadays a lot of people and a lot of businesses want to have their own space on the internet, and it's quite competitive space, right? So you need people who can do those stuff for you. So we become their partners and we help them out. Along with that, I also have my family business to manage. So I have multiple heads to wear, but I am happy with the way I do things. Every day feels like a challenge. So it becomes quite intriguing and fascinating to do various things each and every day. So I wanted to channelize my curiosity in a way that I can talk to various people, I can get to know more about stuff, and at the same time, both the people, the guest and the host, get reach and get marketing in a way. अगर मैं किसी आर्टिस्ट के साथ बात कर रहा हूँ तो आर्टिस्ट के बारे में लोग भी जानेंगे और मेरे बारे में भी लोग जानेंगे और क्या हो रहा है सब आर्ट की फील्ड में वो सब भी जानेंगे, तो मतलब एक साथ 3-4 पर्पस फुलफिल हो रहा है. तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू डू पॉडकास्ट सीरीज एंड वी हैव रिलीज्ड 26 एपिसोड्स टिल नाउ, सो वी आर गोइंग स्ट्रांग. Because you are starting out and you don't know a lot of people, so what you do, you ping your friends, you tell them to appear on your podcast, you tell them to talk about stuff that there has to be a common ground to talk about, right? And you have your friends to talk about things because you share a similar kind of background. So what I thought was, let's start with something that I've done. I'm an engineer, so let's start with engineering life. And that's why I called a few of my friends, and they appeared. They were quite generous enough to appear on my podcast, and that's how the first episode started. So it was quite difficult for me initially for the first few episodes, and that's why I always had this co-host with me to support and also to bring his own perspective. You don't have to compete with others, you are competing with yourself. अगर मेरा फर्स्ट एपिसोड 40 मिनट्स का हो रहा है और मैं तब तक एग्जॉस्ट हो रहा हूँ, फिर नेक्स्ट 3-4-5 एपिसोड के बाद मेरी कैपेसिटी इतनी बढ़ रही है कि मैं आराम से 1 घंटे तक बात कर पा रहा हूँ कोई भी रैंडम टॉपिक पे, मैं सुन पा रहा हूँ ईजिली. क्योंकि पॉडकास्ट में जनरली होता है ना कि गेस्ट बोलेंगे, आप सुनेंगे. तो इफ़ आई एम एबल टू लिसन टू दोज पीपल विथ ईज एंड विथ द सेम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी, तो I have won already. I don't need to compete with others. That's how I always think. Yeah. I don't know whether you'll be able to believe this or not, but आज तक मुझे किसी ने कोई भी चीज़ के लिए ऐसा बोला ही नहीं कि तुम्हें ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए. तो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी लकी कि किसी ने ऐसा बोला नहीं. अगर बोलते तो भी मतलब सबको दिखता है कि मुझे अलग अलग चीज़ें करना पसंद है, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता है कि बीइंग यूजफुल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन बीइंग अ स्पेशलिस्ट इन वन फील्ड. तो अगर इफ़ आई एम एबल टू डू मल्टीपल थिंग्स, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ में मैं बेस्ट ही कर पाऊँगा. कुछ चीज़ें बिगड़ भी जाएगी, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी होगी, लेकिन इफ़ आई एम एबल टू डू थिंग्स इन डिफरेंट एरियाज एंड इफ़ आई एम एबल टू एक्सपेरिमेंट विथ पीपल, विथ थिंग्स, विथ सब्जेक्ट्स, तो उससे होगा ये कि मुझे भी एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा और आई विल बी एबल टू हेल्प मोर एंड मोर पीपल. लेट्स से अगर मैंने एक चीज़ की और उसमें मैं शायद फेल हो गया, तो अगर आपको कुछ उसी फील्ड में कुछ करना होगा और मैं और आप कांटेक्ट में हो, तो मैं आपको तुरंत बता पाऊँगा कि आई हैव डन दिस एंड आई हैव मेड सच मिस्टेक्स, यू डोंट रिपीट दैट मिस्टेक. तो ये बहुत ही यूजफुलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, मुझे लगता है. तो आई डोंट हैव टू बी अ स्पेशलिस्ट, आई कैन बी अ जनरलिस्ट एंड आई कैन स्टिल थ्राइव. It's okay. I was studying in a small town and I didn't see any growth as a 11-year-old. I don't know how I thought about that, but I came to a conclusion that I want to go to a different city where there are more opportunities, there are more things to learn, and I told them. So they agreed. They agreed to a 11-year-old's request and they sent me to a hostel because I wanted to go. There is a sense of trust कि भाई जैनिश कुछ कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा. तो फिर मेरे लिए भी ये एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा हो जाता है. मुझे भी लगता है कि हाँ, अगर इफ़ आई एम गिवन दिस मच अमाउंट ऑफ सपोर्ट
एंड इफ आई एम डूइंग समथिंग आउट ऑफ शेयर पैशन और शेयर लव, देन आई शुड बी एबल टू डू इट बेटर। तो मैं हमेशा फिर वो ज़्यादा अच्छे करने की कोशिश करता रहता हूँ। अगर हमारे घर में से ये सिखाया जाता है कि बेटा लाइफ में काम ही करना है और कुछ नहीं है लाइफ में, सीरियस रहो, ऐसे टाइम पास मत करो, अगर वही सिखाया जाता है तो वी आर प्रोग्राम्ड इन अ वे कि हमें लगेगा कि हम कुछ भी कर रहे हैं ना फन, तो हमें लगेगा हम गिल्टी है एंड वी शुड नॉट डू दैट। तो शुड वाला पॉइंट आ जाता है फिर, तो उसकी वजह से भी लोग ये सोचते हैं कि हाँ मुझे ये नहीं करना चाहिए, मेरे घर वालों को पता चलेगा तो क्या होगा, या फिर ये मॉरली राइट नहीं है, एथिकली राइट नहीं है, क्योंकि आई शुड बी एबल टू वर्क मोर, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। तो ये सब में लोग ये भूल जाते हैं कि ये सारी चीज़ें टेम्पररी है। अगर सिर्फ पैसे कमाने के लिए आप काम करोगे ना तो 10 साल 20 साल से ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे। वो भी मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ। आप हमेशा अपने फैमिली वालों को प्राउड फील करवाने के लिए या फिर अच्छा फील करवाने के लिए काम नहीं कर सकते। हमारी सोसाइटी इस तरह से काम करती है। पूरी एशियन सोसाइटी के लिए स्टेटस, पैसा, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो वो हम सब इस तरह से काम करते हैं, इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि हम इसी तरह से सोचते हैं। तो अगर आप अपने काम को फन की तरह ले पा रहे हो, अब आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको मज़ा आ रहा है, तो आप इजीली आप थ्राइव कर पाओगे, सर्वाइव कर पाओगे। कोई अपने दिमाग को यूज़ करके पैसा कमा रहा है, काम कर रहा है, कोई अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज़ करके पैसा कमा रहा है, काम कर रहा है। हाँ, इक्वालिटी नहीं है, लेकिन वो होगी भी नहीं। सिंगल हैंडेडली आप कितना भी करोगे, लेट्स से मैंने 10 बेगर्स को देख लिया या फिर ऐसे लोगों को देख लिया जिनको मैं हेल्प कर सकता हूँ इन अ वे, कुछ ना कुछ करके, या उनके लिए कुछ उठा लिया या फिर उनको पैसे दे, कुछ भी कर लिया मैंने। ऐसा मैंने 10 लोगों के लिए किया, 100 लोगों के लिए किया। इम्पैक्ट होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन मैं कब तक ये कर पाऊंगा? लोग अपने आप को मिरर में तो देखते हैं हर रोज कि मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ, लेकिन कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते। जो जैसे है वो ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना, इंट्रोस्पेक्ट करना कि क्या फाइन ट्यून करना है, और अगर हेल्प चाहिए तो थेरेपिस्ट के पास जाना या फिर ऐसे कोई प्रोफेशनल के पास जाना, या फिर आपके प्रोफेशन में भी किसी एक्सपर्ट के पास जाना कि उन्होंने कैसे किया, ऐसी सिचुएशंस में कैसे वो बाहर आए, वो सब समझना, सीखना और अपने आप को फाइन ट्यून करना, क्योंकि हर एक की सिचुएशन अलग रहेगी। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप इजीली सारी चीज़ें कर पाओ और कुछ बर्डन ना लगे। और सुसाइड तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, मतलब उससे कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा आपको, क्योंकि आप यू आर नो लॉन्गर कॉन्शियस बीइंग। आपको लगेगा कि सब सॉल्व हो गया, लेकिन आपके आगे पीछे जो लोग हैं उनके लिए फिर लाइफ कैसी हो जाएगी? तो यू कांट बी सेल्फिश एंड एट द सेम टाइम यू कांट बी दैट सेल्फलेस। You'll have to find a middle ground.